आया कहाँ कोई है? तो 7 हो गया, आएगा सारे। Today, in the class of the intellectual property right, we will discuss about the patent amendment of the 2002 Patent Amendment Act 2002 and the features of the Patent Amendment Act 2002 and the Patent Amendment of the 2005, है ना? Patent Amendment of the 2005. ये दो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले द पेटेंट अमेंडमेंट, दो 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपको काफी चेंजेस लाए हैं इनटू फोर्स, न्यूमरस चेंजेस। दो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ द पेटेंट टर्म टू 20 इयर्स। उसमें जो पेटेंट का टर्म था वो 20 इयर्स कर दिया गया। ये आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए हैं। 2002 जो एक्ट था वो अमेंडेड द 1970 लॉ को अमेंड किया एंड all patents granted in India would expire for the 20 years after their application of the filing date. Before this amendment, Indian process patents granted in the field of the pharmaceuticals lasted for only 5 years from the sealing or 7 years from the date of the patent. ये जो टाइम के बारे में इसमें अमेंडमेंट किया गया, विच एवर जी लेस while the term of all other types of the patent was 14 years from the date of the payment. तो 2002 अमेंडमेंट जो आपको किया गया वो एसेशन टू द पेरिस कन्वेंशन एंड पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, ये दो ट्रीटी को एडमिनिस्ट्रेटर करते हुए, वीपो को एडमिनिस्ट्रेटर करते हुए India has signed both in the 1998, and this meant that India had to make its law consistent with the Paris Convention. पेरिस कन्वेंशन के कंसिस्टेंट में इंडिया को अपना लॉ बना सकता है, which prohibits discriminatory treatment of the foreign applicants as well as its right of the priority, which permits foreigners who have previously filed a patent application in their home countries a 12-month period within which they can file an application for the same invention in India, while still retaining the benefit of their earlier home country of the filing date. The 2002 amendment brought into force other changes aimed at bringing India's patent law in tune with the TRIPS agreement, including new definition of the inventions
and the inventive steps, and new exclusion from the patent subject matter like business methods, algorithms, traditional knowledge. The amendment also reversed the burden of the proof of the provision in cases of the patent infringement, streamlined the compulsory licensing framework. जो सारी कमियां थी 1970 में वो अमेंडमेंट किया गया आपको 2002 में, है ना. That they paved the way of the patentivity of the microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म का पहले इंडिया में पेटेंट नहीं होता था, उसके बारे में इसमें रूल बनाया गया. 2002 amended provides 3 grounds for seeking the compulsory patent license. 3 grounds compulsory patent license को बनाने के लिए किया. First, the law provides the broadest grounds for the seeking a compulsory patent license in the case of the non-working of the patented invention. Such a license can be sought only 3 years after the sealing of the concerned patent. Second, there is another provision for grant of the compulsory licenses on the notification of the Indian government. Indian government in circumstances of the national agency, extreme agency, like of the breakout of the epidemics. Third, there is a provision for the compulsory license in the case of the certain patents that are essential to the efficient working of other patent inventions. The 2002 का जो amendment था वो abolished किया गया the concept of the licenses of the right. Under this concept, process patent pertaining to the medicines and food were automatically deemed to be endorsed with the words licenses of right, which should make them available for compulsory licenses by all applications 3 years after the patent grant. The second amendment of the 1970 Act was made through the Patent Amendment Act 2002, Act of the 2002. ये जो 1970 का जो जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स को खत्म किया गया और आर्टिकल 30 में ये सारे एक्ट बनाए गए. The act came into force in the 20th May 2003 with the introduction of the new patent rules 2003 by replacing the earlier patent rules 1972. ये आपको किया गया. Silent features of the Patent Amendment Act 2002, ये सारे आपको silent features हैं. Further codification of the new patentable invention 20 years from the term of the patent of for all technology, ये 20 ईयर उसको ये पेटेंट का टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया और जो कोडिफिकेशन था नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन का उसको किया गया. प्रोविजन फॉर रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ द प्रोसेस पेटेंट, ये आपको ये प्रूफ जो है इन केस ऑफ द प्रोसेस पेटेंट ये आपको किया गया. प्रोविजन ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसेस टू मीट द पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये आपको बनाया गया. कंपल्सरी लाइसेंसेस का ये आपको बनाया गया. डिलीशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लाइसेंस ऑफ द राइट, ये किया गया. इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ द डिफर्ड एग्जामिनेशन, ये आपको किया गया. मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस आफ्टर 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग, है ना. पब्लिकेशंस को मैंडेटरी किया गया 18 मंथ के अंदर, जब द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट है तो उसके 18 मंथ के अंदर डेट ऑफ फाइलिंग को कंपल्सरी किया गया. प्रोविजन फॉर प्रोसेस ऑफ द पेटेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपको किया गया. इस्टेब्लिशेस ऑफ द एपीलेट बोर्ड, ये आपको किया गया. तो प्रोविजन फॉर द पैरेलल इंपोर्ट्स, ये
आपको किया गया। प्रोविजन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम द इंफ्रिजमेंट प्रोसीडिंग फॉर यूज ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन, ये आपको किया गया है ना। प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दैट पेटेंट इन्वेंशन, ये आपको किया गया। प्रोविजन ऑफ द प्रोडक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये प्रोविजन बनाया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे किए गए। तो ये 12 फीचर्स वो आपको 2002 में अमेंडमेंट किया गया है ना। पहला है कोडिफिकेशन इन द पेटेंटेबल इन्वेंशन, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन के बारे में आपको कोडिफिकेशन किया गया। जो टाइम है पेटेंट का वो 20 इयर्स के लिए बढ़ाया गया। प्रोविजन फॉर रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ द प्रोसेस पेटेंट, ये किया गया। प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसेस टू मीट द पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये किया गया। डिलीशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लाइसेंस ऑफ राइट, ये किया गया है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ द डिफर्ड एग्जामिनेशन, ये किया गया। मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस आफ्टर द 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग, ये किया गया। प्रोविजन फॉर प्रोसेस ऑफ द पेटेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अपीलेट बोर्ड, ये आपको किया गया। प्रोविजन फॉर पैरेलल इंपोर्ट्स, ये किया गया। प्रोविजन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर यूज ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल, ये किया गया। प्रोविजन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आपको किया गया। ये सारे अमेंडमेंट 1970 का पेटेंट में आपको पहले किया गया है ना। ये आपको 2002 का अमेंडमेंट है। इसमें 1970 का जो लॉ था उसमें कई सारे चेंजेस किए गए है ना। पहले फार्मास्यूटिकल्स के बारे में नहीं होता था। आप बोलिए आकाश जी। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, अटेंडेंस तो लिया आपने? अटेंडेंस नहीं लिया, अटेंडेंस मैं ले लेता हूं, मैं आपको अभी बता देता हूं सबके अटेंडेंस। ओके सर। अभिषेक दुबे जी रोल नंबर 2, आकाश पवार जी रोल नंबर 3, चंदन शाह जी रोल नंबर 8, जितेंद्र राणा जी रोल नंबर 23, नंदिनी जी 29, ऋषभ नायक जी 54, शेखर जी 41, अंकित शर्मा जी 6, हिमांशु जी 17, हिमांशु पुंडूर जी 18, जैनेश चौहान जी 22, पवन नेगी जी 30, प्रिंस सरोवा जी 31, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, पंद्रह पार्टिसिपेंट्स हैं। रामदत्त भट्ट जी 38, राहुल जी 32, प्रिंस सरोवा जी 31, पवन नेगी जी 30, जैनेश चौहान जी 22, हिमांशु पुंडीर जी 18, हिमांशु जी 17, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, नंदिनी जी 29, जितेंद्र राणा जी 23, चंदन शाह जी 8, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये जो 2002 का जो अमेंडमेंट है उसमें पेरिस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करने के लिए बताया गया। और जो जो अमेंडमेंट के फीचर्स हैं ये सारे अमेंडमेंट के फीचर आपको बताया गया है ना।
तो दूसरा पेटेंट अमेंडमेंट 2005 है. This is the last India's implementation of the changes which required to make the patent law TRIPS compiled happened by the 2005 amendment. ये लास्ट अमेंडमेंट है जो ट्रिप्स के अकॉर्डिंग किया गया है. थ्रू दिस अरेंजमेंट इंडिया लॉ for the first time since 97 allowed patent protection to the substances capable of being using as a pharmaceuticals, food and agrochemicals. The 2005 amendment was preceded by the Presidential Ordinance 2004. ये प्रेसिडेंस के ऑर्डिनेंस से 2004 में कंप्लीट किया गया था. After its promulgation, there was intense debates about the scope of the various provisions. है ना. इंडियन पार्लियामेंट में enacted the 2005 amendment after making changes in the ordinance. The 2005 amendments contain many controversial features that have caused many disputes. They include elaborate provisions concerning what is and is not considerable patentable subject matter, a new definition of the inventive step, criterion of the patentability, procedure governing both pre and post grant of petition, and a mere liberal framework for compulsory licensing. ये आपको किया गया है ना. तो इसके फीचर्स मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं. है ना. ये आपको फीचर्स हैं. थर्ड अमेंडमेंट टू द पेटेंट 97, ये आपको ऑर्डिनेंस 2004 which effect from the 1st January 2005, ये आपको किया गया. This ordinance was later replaced by the Patent Act 2005 on the 4th April 2005, which come into force from 1st January 2005. पार्लियामेंट में बहस हुई और देखना नहीं दिख रहा. प्रिया देखना वो स्क्रीन नहीं आ रहा है. शेयर तो किए थे, नहीं आ रहा है. आ गया लग रहा है. यहाँ पे टच. हाँ यहाँ पे टच. हाँ अब स्क्रीन आ रहा है. तो ये 1 जनवरी 2005 से ये आपको लागू हुआ. इसके 6 फीचर्स थे. ये फीचर्स आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है. द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट, एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट पैटेंट टू ऑल फील्ड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स, केमिकल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. जो एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट फूड में पहले नहीं था, ड्रग्स में नहीं था, केमिकल में नहीं था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं था, इसको आपको एक्सटेंड किया गया. दूसरा, डिलीशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एक्सक्लूसिव मार्केट राइट. एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट से कई प्रोविजंस को हटाया गया. इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रोविजन फॉर इनेबलिंग ग्रांट ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसेस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन टू कंट्री. ये आपको किया गया. कंपल्सरी लाइसेंसेस, कोई मेडिसिन का एक्सपोर्ट करना है उसके लिए किया गया. which have a insufficient or no manufacturing capacity to meet the emergent public health situation. जिसकी कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो बाहर से एक्सपोर्ट करने के लिए उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंसेस, इनेबलिंग द ग्रांट फॉर द कंपल्सरी लाइसेंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोविजन, ये आपको किया गया.
modification in the provision relating to the opposition procedure. Opposition procedure में modification किया गया with a view to streamlining the system by having both the pre-grant and post-grant opposition in the patent office. Patent office में pre-grant और post-grant opposition के लिए ये आपको किया गया. Strengthening the positions relating to the national security to guard against patenting ever to the dual use technology, ये उसमें किया गया. Strengthening the provisions, ये national security guard के लिए, इसके लिए provision किया गया. Rationalization of the provisions relating to the timelines with a view to the introducing flexibility and reducing the processing time for the patent application, ये आपको provision किया गया. इसमें flexibility introduce की गई, processing time को, patent application को reduce किया गया. तो ये silent features हैं आपके 2005 के. ये तीसरा अमेंडमेंट है और ये लास्ट अमेंडमेंट है ना. ये आपको तो 2002 का और 2005 का ये दोनों अमेंडमेंट मैंने आपको आज क्लियर कर दिया. ये आपको जो अमेंडमेंट है, आपके जितने अमेंडमेंट थे वो सारे आपके पेटेंट एक्ट 1970, अमेंडमेंट 1919, अमेंडमेंट 2002, अमेंडमेंट 2002 एंड अमेंडमेंट 2005, ये आपको क्लियर हो गया. तो ये आपका 2002 का और 2005 का ये दो अमेंडमेंट एक्ट आज आप क्लियर कीजिए. ज्यादा आगे जाने का भी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं. तो दूसरा आपको वो जो था पहले वो आपको कर देते हैं, है ना. ये पेटेंट अमेंडमेंट 2005 है. This is the last step in India's implementation of changing required to mix the patent law. TRIPS compliant happened the way of the 2005 amendment. ये आपका इंडिया का लास्ट अमेंडमेंट है. इंडिया में उसके बाद अमेंडमेंट नहीं हुआ है. जो भी खामियां थी वो सारे उसमें चेंज कर दिए गए हैं. पेटेंट प्रोटेक्शन इन चीजों का नहीं था, इन चीजों को लागू किया गया है. और 2005 में ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये ऑर्डिनेंस 2004 में लागू करके ये इंडिया में लागू कर दिया गया. आफ्टर इट्स प्रोंगुलेशन देयर वाज इंटेंस डिबेट about the scopes of the various provision, but the Indian Parliament enacted the 2005 amendment after making changes in the ordinance. Ordinance में change करने के लिए ये आपको किया गया. The 2005 amendment contain many controversial features that have caused many disputes. They include elaborate provisions concerning what is in not considerable patentable subject matter, or a new definition of the inventive step, है ना, creation of the patentability. इसके बारे में ज्यादा जो है आपको डिस्कशन किया गया. प्रोसीजर गवर्निंग बोथ प्री एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, ये आपको ज्यादा इसमें इलोबरेट करके आपको किया गया, है ना. दूसरा कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए ये आपको किया गया. ये अमेंडमेंट 2005 था. और दूसरा 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया, ये 2002 का आपको अमेंडमेंट है ना. 2002 में काफी चेंजेस किए गए थे. जो मोस्ट चेंजेस था वो पेटेंट का टर्म था, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया, है ना. 20 साल के लिए उसको बढ़ाया गया. और 1970 के लॉ को 2002 में आपको चेंज किया गया. ऑल पेटेंट ग्रांटेड इन इंडिया would expire for the 20 years after the application filing date, है ना. Before this amendment, Indian process patents patent granted in the field of the pharmaceutical
lasted for only 5 years. पहले 5 years के लिए यूज होता था फार्मास्यूटिकल पैटर्न, इसको बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया, है ना। 5 years और या 7 years था, इसको बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ द पैटर्न, विच एवर इज द लेस, है ना। जबकि दूसरे टाइप्स ऑफ द पैटर्न 14 years के लिए हुआ करता था फ्रॉम द डेट ऑफ द पैटर्न, इसको बढ़ा करके 20 साल किया गया। 2002 अमेंडमेंट में इंडिया एसेशन टू द पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी के जो भी उसमें फीचर्स आते थे पेरिस कन्वेंशन में, पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी में, ये दोनों टीटी को वीपो के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया और इंडिया इसको 1988 में साइन किया। वीपो के साथ में इंडिया इसको साइन किया, पेरिस कन्वेंशन को साइन किया, पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी को साइन किया। ये साइन करना जरूरी है क्योंकि आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो आपको वो दूसरे देशों में आपको लागू करना पड़ता है, पेटेंट कराना पड़ता है। तो ये पेरिस कन्वेंशन के थ्रू ही होगा। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, ये आपको ट्रीटमेंट ऑफ द फॉरेन एप्लीकेंट्स उसके बाद ही होगा, एज वेल इट्स राइट्स ऑफ द प्रियरिटी, ये आपको उसके बाद ही होगा। विच परमिट्स द फॉरेनर्स को भी उन्होंने परमिट किया, है ना, पेटेंट एप्लीकेंट इन देयर होम कंट्री ए 12 month period within which they can file an application for the same invention in India, है ना, while streamlining the benefit of their earlier home country filing date. ये आपको किया गया। The 2002 amendment में जो चेंजेस किए गए, इंडिया पेटेंट लॉ इन ट्यून विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ में इंडियन पेटेंट लॉ को बनाया गया। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में था 2002 में इंडिया पेटेंट लॉ को उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया, इंक्लूडिंग न्यू डिफिनेशन ऑफ द इन्वेंशन लगाया गया, इन्वेंटिव स्टेप लगाया गया एंड न्यू इंक्लूजन फॉर द पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, और न्यू इंक्लूजन उसमें डाला गया पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर का, लाइक बिजनेस मेथड्स, एल्गोरिदम्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज का जो इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज था इसको 2002 में इंक्लूड किया गया, एल्गोरिदम्स को उसको 2002 में यूज किया गया, बिजनेस मेथड को वो 2002 में आपको यूज किया गया। द अमेंडमेंट आल्सो रिजर्व द बर्डन ऑफ द प्रूफ प्रोविजन involving cases of the process patent infringement and streamline the compulsory licensing framework. दूसरा कंपल्सरी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन किया गया। The 2002 amendment also paved the way for patentability of the microorganism. इन्होंने 2002 का जो अमेंडमेंट था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पेटेंटिंग के लिए भी रास्ता खोल दिया। 2002 अमेंडमेंट प्रोवाइड्स 3 ग्राउंड्स फॉर सीकिंग कंपल्सरी पेटेंट लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंसेस को प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते प्रोवाइड किए। फर्स्ट, the law provides the broadest ground for the seeking a compulsory patent license in the case of the non-working of the patented invention. Such a license can be sought only 3 years after the sealing of the concerned patent. Second, there is another provision for grant of the compulsory licenses on the notification of the Indian government in the circumstances of the national emergency. For extreme urgency like the breakout of the epidemics. Third, there is a provision for the compulsory licenses in the case of the certain patents that are essential to the efficient working of the other patented invention. 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया उसने एबॉलिश किया गया लाइसेंसेस ऑफ राइट को अंडर दिस कंसेप्ट प्रोसेस पैटेंट pertaining to the medicine and foodware automatically deemed to be the endorsed with the license of right, which would make them available for compulsory licensing by all the applicants 3 years after the
पेटेंट ग्रांट, है ना। तो ये आपको सेकेंड अमेंडमेंट था 1970 एक्ट का 2002 में आपको किया गया, जो कि 20 मई 2003 से आपको लागू हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पेटेंट रूल इन द 2003 बाय रिप्लेसिंग द अर्लियर पेटेंट रूल्स को हटा करके वो आपको लागू हुआ। और ये सारे साइलेंट फीचर्स आपको 2002 में आपको था। फर्दर कोडिफिकेशन ऑफ द नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन क्या क्या मैटर होगा वो सारा कोडिफिकेशन किया गया था। 20 इयर्स टर्म ऑफ द पेटेंट फॉर ऑल टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी के लिए 20 साल का टर्म वो फिक्स किया गया। प्रोविजन फॉर रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ द प्रूफ इन केस ऑफ द प्रोसेस पेटेंट, जो रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ द प्रूफ था इसको आपको हटाया गया। प्रोविजन ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसेस टू मीट द पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये किया गया। डिलीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लाइसेंसेस ऑफ राइट, ये आपको किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ द डिफर्ड एग्जामिनेशन, ये किया गया। मैंडेटरी एप्लीकेशन ऑफ पब्लिकेशन आफ्टर 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग, ये आपको लागू किया गया। प्रोविजन फॉर प्रोसेस पेटेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पहले पेटेंट नहीं था, इसका प्रोविजन इंडिया में किया गया, है ना। इस्टेब्लिशमेंट में तब अपील बोर्ड, अपील बोर्ड यहां पर आपको बिठाया गया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया, है ना। प्रोविजन फॉर द पैरेलल इंपोर्ट्स, ये आपको किया गया। प्रोविजन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर यूज ऑफ ए पेटेंटेड इन्वेंशन for obtaining regulatory approval for the product based on that patented invention, ये आपको लागू किया गया। Provision to the protect biodiversity, ये आपको किया गया। ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आपको प्रोटेक्ट के लिए किया गया। ये 12 फीचर्स आपको प्रोवाइड किया गया। आपको इंडियन पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आपको ये 12 फीचर्स आपको प्रोवाइड किया गया। तो ये 12 फीचर्स के बारे में आपको स्टडी करके यहां पर आपको बताया गया है। और जो अमेंडमेंट किया गया है, जो सब्जेक्ट मैटर, बिजनेस मेथड्स, एल्गोरिदम्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सारे नहीं थे, ये सारे अमेंडमेंट्स को लागू किया गया। और पेरिस कन्वेंशन एंड पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी में ये आपको ये साइन कराया गया। जो आपको 2 टीटी जो आपको था वीपो 1998 में, ये आपको साइन कराया गया। और इसके बारे में फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन, ये आपको होम कंट्री में ये आपको दिया गया, है ना। तो पेटेंट अमेंडमेंट 2002 में यही सारी चेंजेज आपको किया गया है। जो सारे चेंजेज किए गए हैं, यही सारे चेंजेज पेटेंट अमेंडमेंट में आपको किया गया। तो जो आपका पेटेंट अमेंडमेंट है 2002 और 2005, आपको दोनों आज कवर कर दिया गया। यही सारे आपके साइलेंट फीचर्स हैं, है ना। पेटेंट अमेंडमेंट 2005 भी आपको बताया दिया गया। 2005 जो है लास्ट स्टेप है इंडिया में, इसके बाद पेटेंट अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और इसमें इन्वेंटिव स्टेप को जोड़ा गया, क्राइटेरियन ऑफ द पेटेंटेबिलिटी को जोड़ा गया, प्रोसीजर गवर्निंग द प्री एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन ये जोड़ा गया, लिबरल फ्रेमवर्क ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसेस ये आपको किया गया, है ना। तो ये सारे उसमें आपको इंडियन पेटेंट लॉ में ये आपको किया गया। तो इंडिया की इंप्लीमेंटेशन में ये सारे फीचर्स उसमें किए गए। और दूसरा 2005 में जो आपको
थर्ड पेटेंट एक्ट था 1970 का, ये अमेंडमेंट किया गया और ये इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 2005 से। दिस ऑर्डिनेंस वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 ऑन 4 अप्रैल 2005। ये इसमें आपको यहां से हुआ और ये सारे साइलेंट फीचर्स, ये सारे साइलेंट फीचर्स हैं, है ना। इसमें आपको प्रोडक्ट को बढ़ाया गया, ऑल फील्ड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी किया गया, इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स, केमिकल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको शामिल किया गया। डिलीशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स, ये किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रोविजन फॉर इनेबलिंग द ग्रांट ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसेस एक्सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन, ये किया गया कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है उसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंसेस वो बनाया गया, है ना। तो बहुत प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन ये कैसे हो पेटेंट ऑफिस में, ये किया गया। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ये स्ट्रेंथन किया गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, यही आपका 2002 और 2005 का यहीं तक रहने देते हैं।